Okay, set number 2. And this questions we are taking from modules. Question number 2. A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally at constant speed. When air resistance is taken into consideration, the bomb falls to earth exactly below the aeroplane, falls to earth behind the aeroplane, falls to earth ahead of the aeroplane, flies with the aeroplane. Okay, so very simple question. This is ground. You have aeroplane somewhere over here. Now, as you know, अगर यहाँ पे air resistance नहीं होता, तो definitely the bomb will fall ahead, right? Ahead, मतलब option number C. Because of the air resistance, it will fall behind. So option number fall to earth behind the aeroplane. So a simple question. Next question. An aeroplane moving horizontally with a speed of 720 kilometer per hour. So you have aeroplane which is moving with a speed of 720 kilometer per hour. Okay. Drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by the food packet to reach the ground and its horizontal range is बहुत simple है. Same type of question. You have ground, then you have aeroplane which is moving horizontally, and this aeroplane drops a food packet. तो you should know कि आपको जब पूछा है कि इस फूड पैकेट को कितना टाइम लगेगा नीचे जाके गिरने में, तो वी आर आस्किंग यू टाइम ऑफ फ्लाइट. पर टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉट ऑब्लिक. तो यहाँ पे जो फूड पैकेट है, इट विल फॉल इन टाइम t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g. क्योंकि ये मोशन जो है इट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर ये ऑब्लिक होता, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड होता, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता तो 2u sin θ/g. देन आल्सो दे आर आस्किंग यू रेंज. रेंज पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज. आपको पता होगा दिस डिस्टेंस इज रेंज, और आपको पता होगा दिस इज u इनटू टाइम. गुड, सिंपल. तो यू हैव टू फाइंड 2h. h कितना दिया है? 396.9 अपॉन g. आपको जब ऐसे वियर्ड नंबर दियो तो g की वैल्यू 9.8 ही डालना पड़ेगा, लिखा हो या नहीं लिखा हो. So you are supposed to put 9.8. So 396.9 upon 9.8. अगर ऊपर 4000 होता, नीचे 10 होता तो 4. ऊपर अगर 400 होता, नीचे अगर 10 होता तो, ऊपर अगर 400 होता, नीचे 10 होता तो 40. ऊपर 400 से कम है, नीचे 10 से कम है. बता रहे हैं आपको, वी आर गिविंग यू हिंट. 1 एंड 4 की 40, 4 पक्का. गुड, इट इज 40, राइट. So you have root of 80, right? Root of 80, approximately 9. So this is approximately 9, क्योंकि root of 81 is 9. 9 second, option number D. लेकिन दूसरा भी तो बाकी है, वो भी फाइंड कर लेते हैं. U into T. U दिया है कि आपको 720 किलोमीटर पर आवर है. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. 720 किलोमीटर पर आवर मतलब मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड. 1 and 40, 45 200. तो दिस इज 200 मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास ये है 200 मीटर पर सेकेंड, and this is 9. This is 1800 meter. So range is 1800 meter, and time it takes to reach the ground is nothing but 9 seconds. Next question.
a particle A is dropped from a height and another particle B is thrown in horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is, मतलब ऐसा है, let us say you have this tower building. इस बिल्डिंग पे से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया. ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. तो जो पहला था उसका इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और जो दूसरा है उसको आपने थ्रो किया एंड इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ऐसा. सो इट विल फॉल समथिंग लाइक दिस विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो u2 is 5 meter per second. Good. The correct statement is both the particles will reach at the ground simultaneously. मतलब दोनों पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए सेम टाइम लगेगा क्या? नंबर 2, both particles will reach at ground with same speed. Number 3, particle A will reach at ground first with respect to particle B. Particle B will reach first with respect to A. So obviously this is something related to basics. ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए जिसको आपने ड्रॉप किया उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0, फाइनल वेलोसिटी है v और आपको पूछा है टाइम, बेसिकली क्योंकि टाइम का ही इंफॉर्मेशन पूछा है आपको मोस्टली. So which is the equation which connects V, U, A and T? V equal to U plus AT. तो ऑब्जेक्ट 1 का मतलब पार्टिकल 1 का और पार्टिकल 1 V equal to U plus AT, बराबर. V पता नहीं कितना, we don't care. U is 0 plus GT, right? क्योंकि G because it is going in the direction of gravity. तो T यहाँ पे आएगा V by G. Remember, जब आप ड्रॉप करते हो तो उसमें X कंपोनेंट नहीं होता, मोशन इज प्योरली Y. करेक्ट. दूसरा केस में अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था. तो टाइम ऑफ फ्लाइट केस 2 time of flight t is under root of 2h by g, right? दोनों ही केस में, पहले केस में टाइम या दूसरे केस में टाइम, दोनों ही केस में ये दोनों के दोनों x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करते. पार्टिकल 1 मतलब केस 1, ओके. केस 2 इज पार्टिकल नंबर 2. तो एज यू कैन सी, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, अगर आप थ्रो कर रहे हो तो वो हाइट पे डिपेंड करता है. मतलब दोनों ही दे डू नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. क्योंकि पहले केस में ड्रॉप करना मतलब एक्स कंपोनेंट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, करेक्ट. दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली एक्स कंपोनेंट, पर टाइम दोनों केस में डिपेंड ही नहीं करा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब they both will reach simultaneously. Both particles will reach the ground simultaneously. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन. So there is one more way out to be sure, which is very simple. You said S equal to ut plus 1/2 AT square. Okay, good. Then मान लो इस बिल्डिंग का हाइट था h. Assume the height is h. Then in this case, if height is h, so case number 1, you can use S equal to ut plus 1/2 AT square. Particle 1, S is h, u is 0 and half gt square. तो यहां से मिल जाएगा 2h by g equal to t square. तो t equal to under root of 2h by g. तो केस 1 में भी वही इक्वेशन, केस 2 में भी वही इक्वेशन. मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों में इक्वेशन फॉर टाइम इज कमिंग आउट टू बी सेम, मतलब बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड
साइमल्टेनियसली, तो ऐसा भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of 4 meters per second. It hits the ground after 4.4 seconds. Which of the following statement given below are true? Are true. Okay, so can be multiple true also. So ऐसा है, you have a table, horizontal table, right? Then there is a ball which is rolled off. Rolled off मतलब उसको ऐसा you are pushing it in horizontal direction. Rolled off, so धक्का दे दिया, कहाँ पे? horizontal direction में. It will go and fall on the ground, right? So it hits the ground in 0.4 second. मतलब t which is under root of 2h by g is 0.4 और ऊपर से u की वैल्यू आपको दी है 4 मीटर पर सेकेंड. So which of the following statements are true? It hits the ground at horizontal distance of 1.6. मैंने अभी बताया आपको horizontal range, अभी बताया r is u into t. u आपके पास है 4, ये u है और ये नीचे है 4. u is 4, t is 0.4, तो ये आ गया आपका पास 1.6 मीटर. मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, ए नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? वे उन्होंने बोला है आर, which of the following below are true, मतलब multiple true. So in this case, the speed with which it hits the ground is 4 meter per second. फाइनल स्पीड निकालने के लिए बोला है आपको, तो फाइनल स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? How will you find out final speed? You cannot directly say v equal to u plus at. This is imagination and you have to basically understand the concept. यहाँ पे ux होता है u और uy होता है 0. इसके लिए आप इनिशियल स्पीड को सेफली आप लिख सकते हो, u is under root of ux square plus uy square, पर uy तो 0 था, तो ux u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर ओनली, क्योंकि uy 0 है, तो u इक्वल टू ux, राइट? बट ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट 0. ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो दोनों वेलोसिटी होंगी, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो अब आपको vx और vy दोनों निकालना है. बट रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है. फोर्स नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हमेशा रहेगा सेम, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड. नंबर 1. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया. क्यों? यू सी, जब x कंपोनेंट ही 4 आ गया और y कंपोनेंट 0 नहीं होने वाला. क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज इट इज uy प्लस ay t और uy इज 0. ay की वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो, और t कितना लगा? 0.4. 0.4 इंटू 10 इज 4, बराबर, राइट? जब vx 4 है, vy 4 है, उन दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड करके रूट लोगे तो 4 से बड़ा ही होगा. 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 4 से बड़ा होता है. इन्होंने क्या बोला है? 4 आएगा क्या? 4 नहीं, इट विल बी बेसिकली 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, मतलब 4 रूट 2. दिस इज 4 रूट 2 बेसिकली. ये जो आप फाइंड करोगे, दिस इज 4 रूट 2 बिकॉज vx इज 4 स्क्वायर, vx इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, मतलब कितना? 4 रूट 2. हाँ, तो 4 रूट 2 इज नॉट 4, इट इज 4 रूट 2. ओके, तो इफ यू नो दिस, अगर आपको इतना पता है, ये ओरली ही सॉल्व होने वाला था. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर 4 से बड़ा होगा. तो यू जस्ट हैड टू नो दैट आंसर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 4. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 रूट 2. तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता. देन लेट अस सी व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी.
स्टेटमेंट सी, हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8. सिंपल. हाइट मतलब अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वापस से s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. और इंटरेस्टिंगली ये y और ये y, ये भी y, और यू वाई तो है 0 0. एस वाई मतलब हाइट, दिस इज 0, दिस इज प्लस ए वाई की वैल्यू जी, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू दी है आपको कितना 0.4, 0.4 का स्क्वायर. ओके, तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 10 पावर -2, और ये 10 तो था ही अपॉन 2, 1 एंड 8 जा, दिस इज 10 इंटू 10 पावर -2 10 पावर -1 और 8 मतलब 0.8, 0.8 मीटर. 0.8 मीटर, यस. तो सी स्टेटमेंट भी है करेक्ट. इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल. नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? जब ये हिट करेगा तब ऐसा जाएगा. तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, लिटिल बिट. आई एम मॉडिफाइंग लिटिल बिट, नॉट मच. होगा क्या, ये ऐसा जाएगा तो ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाएगा थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ. अब थीटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंगल फाइंड करना मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करना. कौन सा y कौन सा x? फाइनल. इनिशियल तो y 0 ही है ना. फाइनल क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे पूछा है कि ग्राउंड पे इट हिट्स द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे y और x कंपोनेंट का रेशो जब पता ही है y और x सेम है कि 4/4, हाँ तो वो 1 होगा. और tan थीटा की वैल्यू 145 पे होती है, 60 पे नहीं होती है. तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. सो यू हैव टू करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड सी. सो हाउ डू यू गेट टू आंसर्स? एटलीस्ट कौन सा गलत है ओरली कैसे बता सकते हो? अगेन बेसिक्स. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ux मतलब u 4, uy इज 0, और जब ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ux इज vx, क्योंकि चेंज होता नहीं है, x कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो vx इज ux मतलब vx ही 4 आ गया. और y कंपोनेंट 0 नहीं होता है ग्राउंड पे पहुंचने के बाद. तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लिखते हो तो vx itself is 4, तो 4 स्क्वायर प्लस समथिंग मतलब 4 स्क्वायर से बड़ा, 16 से बड़ा. उसका रूट लोगे तो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा तो ऑप्शन नंबर भी 4 तो हो नहीं सकता. राइट, हो गया. स्टेटमेंट बी ओरली खत्म. देन व्हेन यू फाइंड आउट vy यू गेट 4, vx vy सेम 1 अपॉन मतलब 4/4 इज 1, एंगल इज 45. तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट डी इज आल्सो रॉन्ग. तो दो तो ऐसे ही उड़ा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिल्डिंग P इज 150 मीटर टॉल. पहले मैं ग्राउंड ले लेता हूं बिकॉज ग्राउंड लेवल से मेजरमेंट्स होंगे हमारे. तो यू हैव अ बिल्डिंग P which is 150 मीटर टॉल. So this is building P 150 मीटर टॉल is at a distance of 100 meter from another building Q. ये जो P बिल्डिंग है ये Q बिल्डिंग से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है. So there is another building Q over here. Okay, and P building is at a distance of 100 meters from Q building. मतलब distance between these two. I don't know Q building tall है कि नहीं, देखते हैं बाद में. तो इसका आपको हाइट नहीं पता, you don't know what is the height of building Q. देखते हैं आगे दिया होगा तो दिया होगा. दिस इज 100 मीटर और इसका हाइट कितना है 150 मीटर. ओके, so height of this is 150 meter. So this much is 150. आगे आपको बोला है what they are telling you is a ball is thrown horizontally from the top of building P. इस बिल्डिंग P के टॉप से अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, है ना. हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन.
right? Such that it enters a window in building Q. It enters a window which is somewhere over here, right? नीचे ग्राउंड पे नहीं गया, कहाँ गया? विंडो में. Good. The height of the window above the ground is 25. मतलब ये विंडो का डिस्टेंस है 25 मीटर, right? 25. Okay. The speed with which the ball is thrown must be. What is the value of ux? That is u, right? Very good question. P बिल्डिंग से जो 150 मीटर टॉल था, जो दूसरे बिल्डिंग से 100 मीटर पे है, उस P बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को 100 थ्रो किया जो Q बिल्डिंग के एक विंडो में गया, नॉट ऑन द ग्राउंड, एंड ये विंडो था 25 मीटर, 25 मीटर्स. Range is 100. Okay, but then height you have to, you cannot take height as 150 if you say range is 100, right? तो मतलब क्या? इसका मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं. एंड द आइडिया हियर इज, व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब मोशन खत्म होना, राइट? मान लो मोशन विंडो में जाने के बाद खत्म हो गया. मतलब मुझे अगर रेंज 100 मीटर लेना है, मतलब ये अगर रेंज मुझे लेना है, अगर मैं इसको रेंज लेना चाहता हूं तो हाइट मुझे 150 में से 25 माइनस करना पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड. तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक. अदरवाइज 10 तक का क्वेश्चन है, 10 स्टेप, बट इफ यू अप्लाई concepts, height will be 125. Range is 100. Very good. So the speed with which the ball is thrown, how do you find out speed in this case? Remember, this question is not oblique projectile motion. This is horizontal projectile motion. So in which equation do you see u? अभी देखा था. Did you see u somewhere? I saw in the equation for range. Yes, wait. Correct. Range तो पता है 100, but time of flight कहाँ पता है? But time of flight में आता है h. Very good. So this is how you start solving question. You say जो पता है वहां से स्टार्ट करो, right? तो start with saying कि मुझे range पता है, मुझे u फाइंड करना है. कम से कम एक इक्वेशन है जो रेंज और u को कनेक्ट करता है. फिर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे होता है √2h/g. तो फॉर्मूला तो बन गया. रेंज एज यू सेड इज 100. तो यू हैव 100 इक्वल टू u √2 into 125/g. g की वैल्यू 10. This is 250/10. 25. 100 equal to u into √25 is 5. 100 equal to u into 5 ones are and 20. So u equal to 20 meter per second. Oh, option number A. Very good. Next question. A body is projected horizontally from the top of a building. It strikes the ground after time t, मतलब t is √2h/g, with its velocity vector making angle theta, मतलब tan is dy/dx. Okay, with the horizontal, of course, the speed with which the body is projected is simple. Speed with which the body is projected मतलब u, है ना? QU, because of course आपको पता है प्रोजेक्टेड मतलब जहां से उसको थ्रो किया. टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव थ्रोन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग हॉरिजॉन्टली. ux is u. ui तो एनीवेज इज नॉट देयर, इट इज 0. आपको पूछा है ux मतलब u पूछा है. व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, लेट मी ड्रॉ ग्राउंड हियर. दिस वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी का वेक्टर. डायरेक्शन मतलब दिस डायरेक्शन मेक्स एंगल ऑफ थीटा.
और आपको ऑलरेडी पता है tan थीटा इज वी वाई बाय वी एक्स. वेरी गुड. एंड ऑब्वियसली यू नो कि वी एक्स is nothing but ux, क्योंकि it does not change नहीं होता. x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो there is no acceleration. So you know that tan theta is vy by ux is u cos theta नहीं, वो ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक ग्राउंड टू ग्राउंड. यहाँ पे ux is u, vx is ux which is u, और आपको फाइंड करना है u. तो u क्या आ गया? u क्या आया? vy by tan थीटा, vy by tan थीटा. डिनोमिनेटर में tan थीटा एक ही है. कौन सा है? सी. खत्म क्वेश्चन. वेल वेट, हम खत्म तो हो गया बट उसको कंप्लीट करते हैं. अभी vy इक्वल टू gt कैसे आएगा? vy इक्वल टू uy प्लस ayt. करेक्ट. vy इज uy, जीरो होता है इस केस में. इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है. ay है g और ये है t. vy इज gt. गए ऊपर u इक्वल टू vy विच इज gt बाय tan थीटा. आ गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is projected with a speed u at an angle alpha with the horizontal. The speed of the body when its velocity vector makes an angle beta with the vertical is. Simple. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, which will again test your understanding of projectile motion. So, according to the question, what they are telling you is, when the body is projected, ये y-axis, ये x-axis. When the projectile is projected with speed u, angle is alpha. Angle is alpha. मतलब पहले तो ये ट्रैजेक्टरी है, सबसे पहले ट्रैजेक्टरी दिखाओ. तो दिस इज ट्रैजेक्टरी. उसमें से आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है, दैट इज u एंड विच इज गिवन टू यू एज अल्फा. तो इस u का जो एंगल है इसको बोला है अल्फा. आगे बोला है स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन the speed of the body when its velocity vector makes angle beta with the vertical. मान लो एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो. मान लो यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट. जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल और इस केस में इस पॉइंट पे ये पॉइंट आ गया आपका बी पॉइंट. यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. Okay, this is direction of velocity v. This angle here is beta, right? Good. When this is the case, जब प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी ने एंगल बीटा बनाया विथ वर्टिकल, उस टाइम पे स्पीड कितना, मतलब उस टाइम पे v कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल कितना है v, पूछा क्या है v. तो initially, as you know, initial velocity के components, if you remember, there are two components, एक x component, एक y component. यहाँ पे जो uy होता है वो होता है u sin of theta, लेकिन यहाँ पे बोला है अल्फा. और ux is nothing but ux is nothing but u cos alpha. Very good, u cos alpha. और यहाँ at point B जब एंगल बना बीटा, राइट, ये आपका कंपोनेंट है vy और vy को हमेशा परपेंडिकुलर होता है vx. ये है vx, करेक्ट. तो vy ये बीटा को है एडजेसेंट, मतलब vy आपका आएगा v cos ऑफ बीटा. साइन नहीं, cos. क्यों cos? अरे एंगल को लग के जो होता है वो cos होता है.
यहाँ पे कैसे आपने एंगल को लग के यूएक्स को क्या बोला, कॉस। यहाँ पे एंगल को लग के कौन सा है, वी वाई, तो वी वाई कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस, तो वी वाई इज वी कॉस बीटा, और जो दूर वाला होता है वो साइन, तो वी एक्स इक्वल टू वी साइन बीटा। यहां तक समझा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, क्या पूछा है, वी पूछा है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अल्फा बीटा दिख रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता, अरे वेरी गुड, तो Vx इक्वल टू ux, बट Vx was V sin beta, ux was u cos alpha, तो V इक्वल टू u cos alpha अपॉन sin beta, बराबर। देखो कहां पे है, u cos alpha upon sin beta, ऑप्शन नंबर बी, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। तो ये सही है कि यहाँ पे वी वाई नेगेटिव है, बट द स्पीड और वैसे भी स्पीड आपने फाइंड किया एक्स कंपोनेंट से, राइट, डू यू एग्री, यू से दैट Vx is ux, if you say Vx is ux, Vx or ux both are positive, so you are not even using y component anywhere, तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, या फिर मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू वैसे भी आएगा, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो यूजिंग यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, व्हाई नॉट, क्योंकि देखो क्या है, आपके पास ना अल्फा का वैल्यू है ना बीटा का वैल्यू है, नंबर वन, तो ना आपको टाइम पता है कितने टाइम पे वो बी पॉइंट पे, ना ये पता है, ना आपको वर्टिकल हाइट पता है, तो यू कैन नॉट यूज, व्हाट यू नो इज नंबर वन, x component of velocity never changes, number two, answer itself is in terms of alpha and beta, तो if you want to use y components, वो क्या रिलेशन लिखोगे, you cannot relate vy and uy, if you say okay, you say vy equal to uy plus ayt बोल सकते हो, so vy is v cos beta, so maybe you will write down vy equal to uy plus ayt, so this is v cos of beta, बराबर, this is u sin of alpha, this is minus g, but then you don't know time, अगर आपको टाइम का इंफॉर्मेशन दिया होता तो क्वाइट पॉसिबल कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेते, बट यू डोंट नो व्हाट इज द टाइम at point B when it makes angle of beta with respect to vertical, so that is why हमने बोला कि जो चेंज नहीं होता वो बेस्ट है, use this. Next question, a ball is projected with a certain speed from a point on the ground which is at a distance of 30 meters from a vertical wall. If the angle of projection is 45 with the horizontal, the ball just clears the top of the wall and strikes the ground at a distance of 10 meters from the wall. On the other side of the wall, of course, the height of the wall is, यहाँ पे एक छोटा सा टिप, so that you don't get confused, क्योंकि ये just word जब आता है तो जस्ट वर्ड का क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, टनल का केस, राइट, वो जस्ट बेसिकली टचेस है ना, तो उसमें जो हाइट ऑफ द टनल था इट वाज मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्यों नहीं है, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन में आपको बोला है ball is projected with a certain speed from a point on the ground which is at a distance of 30 meters from the vertical wall, तो यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, इससे 30 मीटर डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया था, मतलब आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम समवेयर हियर, सो यू आर प्रोजेक्टिंग द बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना है
30 मीटर। आगे बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया है 45, मतलब रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। आगे बोला है द बॉल जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब वॉल से आगे सिर्फ वो 10 मीटर जाता है, राइट। अगर मैक्सिमम हाइट होता तो वो बिल्कुल मोशन के सेंटर में होता, मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंटर, हाफ, टॉप मोस्ट, राइट, क्लियर। तो फिर 30 और 30 बोलना चाहिए था। डू यू एग्री? वॉल से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 30 मीटर पे, वॉल को क्रॉस करने के बाद बॉल गिर रहा है 10 मीटर पे। अगर बोला होता कि वॉल को क्रॉस करने के बाद बॉल गिर रहा है 30 मीटर पे, ऐसा बोला होता, तो इसका मतलब बराबर हाफ और हाफ, तब वो होता मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे पहली गलती होती है कि जस्ट बोला ना तो कुछ भी डिस्टेंस हो उसको मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं। नो, इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट बिकॉज द बॉल विल गो लाइक दिस। थोड़ा ऑफ कोर्स डायग्राम इज नॉट करेक्ट, तो मैं काम करता हूं, मैं पहले तो ड्रॉ कर लेता हूं ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, फिर मैं दिखाता हूं बॉल। तो बॉल इज समवेयर ओवर हियर, राइट। तो इस केस में पहली गलती जो हो सकती है दैट इज बॉल का जो कुछ भी हाइट दिया हो नहीं दिया हो, आई डोंट केयर, पूछा है, राइट। अदरवाइज यू सी वेयर यू कैन गो, गलती से भी अगर इसको सेंटर में ले लिया, इफ यू कमिट दिस मिस्टेक, गए काम से, क्योंकि फिर आप बोलोगे ये डिस्टेंस इज r/2, हाँ r/2, और r और h का रिलेशन तो आपको पता ही होता है, पता होता है ना, r = 4h cot थीटा, ऊपर से थीटा भी दे के रखा है, cot 45 1, तो h इज r/4, राइट। गए, अगर ऐसा करने गए तो कंप्लीटली गए, रेंज 40 ले लिया, cot थीटा की वैल्यू 1 आ गई, ये 40 है, ये 4h है, तो 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, ओके। So that is why you have to be little careful, understand the question first. So this is the question. अब आगे, अब सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस, हाइट ऑफ द वॉल है, कैपिटल एच में मैं काम करता हूँ, नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन मैं इसको वाई बोलता हूँ, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस मतलब वाई इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी, मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 है, यू वाई की वैल्यू आ जाएगी u साइन 45, और u की वैल्यू अभी हमको कुछ बोला है क्या, नहीं, सर्टन स्पीड, वो देखेंगे बाद में, राइट। तो यू आई मिल गया, और अगर आपको t मिल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, राइट। सो नाउ आई विल गिव यू more than 24 hours to do this question as an assignment. Think about this and try to solve.